سرکاری ہسپتالوں میں MRI کے لیے اب 9,000 روپے کا فارمولا. دل کے مریض اب دل تھام لیں. انجیوگرافی کا کم سے کم خرچہ 25,000 روپے ہوگا. دل کا بائی پاس آپریشن 2.5 لاکھ میں کیا جائے گا. تبدیلی سرکار نے عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا. سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجہ اور مختلف ٹیسٹ کی فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا. OPD کے مریض اور پرائیویٹ مریضوں کے لیے الگ الگ ریٹس نافذ کیے گئے، جن کی صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی. نئے ریٹس کے مطابق پیتھالوجی لیبارٹری کے 197 ریٹس طے ہوئے، جو 50 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک ہیں. ہیپاٹائٹس کا جینو ٹائپ پتہ چلانے کا ریٹ 1,500 سے 10,000 روپے. ہیمٹولوجی سیکشن میں 64 اقسام کے ٹیسٹوں کے ریٹ 30 روپے سے 10,500 روپے تک مقرر کیے گئے ہیں. یورولوجی وارڈ میں 15,000 سے 30,000 روپے لیے جائیں گے. انجیوگرافی کے 25,200 سے 45,000. اوپن ہارٹ سرجری، VCD سرجری، ACD سرجری، ٹوٹل کراکشن، والو سرجری اور کلوز ہارٹ سرجری کے 2.5 لاکھ، جبکہ دیگر اخراجات 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہوں گے. 27 اقسام کے CT اسکین کے لیے 2,000 سے 5,000 تک اور انجیکشن کے ساتھ 3,000 سے 7,000 تک اور 100 روپے فی پرنٹ وصول کیے جائیں گے. گردہ وارڈ میں ڈائلیسس کرانے کے 4 سے 8,000 روپے. گردے کے دیگر امراض کے علاج پر 700 سے 20,000 روپے چارج ہوں گے. نیورو سرجری کی 4 کیٹیگریز میں 25,000 سے 1.5 لاکھ تک کا آپریشن ہوگا. پرائیویٹ مریض کے لیے 50,000 سے 3.5 لاکھ تک کا ریٹ ہوگا. جنرل سرجری کو 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا. عام مریضوں کے لیے 3,000 سے 20,000 اور پرائیویٹ مریض کے لیے 15,000 سے 60,000 روپے تک ریٹ ہوں گے. ہڈی وارڈ میں جوڑوں کی تبدیلی کے ریٹس 20 سے 70,000، بڑے آپریشن کے ریٹ 15,000 سے 55,000. ماڈریٹ سرجری کے ریٹ 12,000 سے 45,000 اور مائن سرجری کے ریٹ 8,000 سے 35,000 ہوں گے. شعبہ ناک، کان اور گلے کے مریض 1,500 سے 10,000 روپے دیں گے. C سیکشن کے 50,000 سے 1 لاکھ چارج کیے جائیں گے. آنکھ کے آپریشن کے 1,000 سے 50,000 روپے چارج ہوں گے. اس کے علاوہ دیگر تمام ٹیسٹ کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کا اطلاق ہوگا. بہتر صحت سہولتوں کی فراہمی کا وعدہ جھانسا ثابت ہوا. سستا علاج بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور، مریض بلبلا اٹھے. مہنگا علاج نہ کروا سکتے تو کہاں جائیں گے؟ غریب مریض شکوہ کناں ہیں. پہلے بھی زیادہ تھے، اب تو بہت زیادہ ریٹ ہے. جو ٹیسٹ غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہیں. ان لوگوں نے یعنی کہ اتنے بڑھ کر ریٹ لگائے ہوئے ہیں نا. سرکاری کا کیا مقصد ہے؟ لوگ کس لیے ادھر آتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل ہے، ادھر ہمارا اچھا علاج ہو. پہلے تو عوام ہی ہماری بہت غریب ہے، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ سرکاری طور پر کرنے چاہیے، ہاسپٹل کے اندر ہی، باہر سے نہیں لکھ کے دینے چاہیے. غریب غربا یہ ریٹ نہیں دے سکتے. ہاں جی، اسے کم کیا جائے. غریب کے لیے پہلے زیادہ تھے ریٹ اور مزید بڑھا دیے گئے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کم کرے. زندہ ابھینندن کے بدلے مردہ شاکر اللہ. واگا بارڈر پر کل خوشیوں کی جگہ آج افسردگی کے ڈیرے لگ گئے. بھارتی جیل میں جاں بحق ہونے والے شاکر اللہ کی میت براستہ واگا بارڈر پاکستان کے حوالے کر دی گئی. تفصیلات بتا رہے ہیں شارق ندیم. پلوامہ حملے کے بعد بھارتی قید میں مارے جانے والے شاکر اللہ کی قومی پرچم میں لپٹی میت کو رینجرز، جوانوں اور پاکستان کے حکام نے وصول کیا. میت پاکستان آنے پر شاکر اللہ کے لواحقین کی آنکھیں اشکبار تھیں. شاکر اللہ کے بھائی نے کہا کہ ہم نے گزشتہ روز بھارت کو صحیح سلامت ابھینندن واپس کیا، جبکہ بھارت ہمیں لاش حوالے کر رہا ہے. ہم نے کل آپ کا ایک بندہ چھوڑا، آپ کو صحیح سلامت دیا اور آپ نے اس کے عوض کا ہمیں کیا دیا؟ ایک لاش دی ہے. شاکر اللہ کے بھائی نے کہا کہ شاکر اللہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور 16 سال قبل لاپتہ ہوا تھا. انہیں 20 فروری کو بذریعہ ٹی وی معلوم ہوا کہ وہ بھارت میں ہے اور اسے مار دیا گیا ہے. 16 سال بعد یہ ابھی 20 تاریخ کو ہم نے خبروں میں سنا ہے کہ اس کو انڈیا جیل میں ہلاک کر دیا گیا ڈنڈا پتھروں کے سے. شاکر اللہ کی میت اس کے آبائی علاقے ڈسکا روانہ کر دی گئی ہے، جہاں اس کی تدفین کی جائے گی. کیمرامین عدیل چودھری اور سید معراج کے ہمراہ سے شاہ رخ ندیم، سٹی 42. ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گورنر پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. کہتے ہیں بھارتی الیکشن تک بھارتی جارحیت کا خطرہ رہے گا.
انڈین میڈیا کے ایک سیکشن نے جنگ کو ہوا دی ہے، پاکستانی مذاکرات کے لیے تیار ہیں جبکہ امریکی کانگریس کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کی خواہش تھی، ہے، اس پہ کیپیبلٹی ہے، ڈٹرمنیشن ہے اور صلاحیت موجود ہے، اور جب انہوں نے ہم پہ حملہ آور ہوئے اور ہم نے رسپونڈ کیا، جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے وزیر اعظم کی سربراہی میں جو منعقد ہوئی تھی ان کو یہ اختیار دیا تھا، تو انہوں نے اپنی صلاحیت کا واضح پیغام تو دے دیا اور ان کے 2 طیارے گرا کر انہوں نے اپنی دھاک قائم کر لی۔ ہم مزید اس فرنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی آپ کو بتائیں فضائی روٹ بند ہونے کے باعث لاہور ایئرپورٹ چوتھے روز بھی بند ہے۔ فضائی آپریشن معطل رہا، لاہور سے بیرون اور اندرون ملک جانے والی 36 اور آنے والی 38 کمرشل پروازیں منسوخ ہوئیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند ہونے کے باعث آج چوتھے روز بھی لاہور سے باہر اور لاہور کو آنے والی دیگر پروازیں منسوخ رہیں، جن میں ملکی اور غیر ملکی تقریباً 75 سے زائد پروازیں شامل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق PIA کی آنے اور جانے والی 7 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ ایئر بلو کی 2، قطر ایئر ویز کی 2، سرین ایئر کی 2، ترکش ایئر کی 1، عمان ایئر کی 1، ایمریٹس ایئر کی 1 اور اتحاد ایئر ویز کی بھی 1 پرواز منسوخ ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اندرون و بیرون ملک جانے والی 38 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جن میں PIA کی 4، سعودی ایئر کی 3، ایئر بلو کی 2، قطر ایئر ویز کی 2، اتحاد ایئر کی 1۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کل دن 1 بجے کھولا جائے گا۔ سعید احمد، سعید، سٹی 42۔ ادھر ٹھوکر نیاز بیگ اور مصری شاہ کے علاقے میں جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیاز بیگ کے علاقے میں جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں گندگی سے ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ LWMC کے نمائندے اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کے نمائندے کبھی علاقے میں آئے۔ LWMC عملے نے سرکاری اسکول کے گیٹ کو ڈمپنگ سائٹ میں بدل دیا۔ گورنمنٹ مدرسۃ البنات اسکول کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے طالب علموں کو کلاسز میں پڑھائی کرنا محال ہو گیا۔ آپ کو بتائیں شہر میں گندگی کے انبار لگ چکے ہیں، LWMC افسران اور عملے کی چھٹی بھی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ کل بھی حاضر ہوگا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، شہر میں گندگی کے انبار لگ چکے ہیں، LWMC افسران اور عملے کی چھٹی بند کر دی گئی ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ کل بھی حاضر رہے گا۔ کل اتوار کی چھٹی بند کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں چونکہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ LDA واک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ کا بزنس پلان بنانے میں ناکام ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ مالیت کا منصوبہ 80% سے زائد مکمل کر کے ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بات کریں گے، مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں UET کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ نے طلبہ و طالبات پر جینز پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے IBM ڈپارٹمنٹ نے طلباء و طالبات کے لیے نیا ڈریس کوڈ جاری کر دیا۔ نئے ڈریس کوڈ میں طالبات کے لیے دوپٹہ یا اسکارف اوڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ طالبات کے لیے جینز، ٹائٹس اور کیپری پینٹس پہننے پر پابندی نافذ کر دی گئی ہے۔ نئے ڈریس کوڈ میں طالبات کے لیے سلیو لیس شرٹ اور کھلے گلے والی شرٹ پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح طلباء کے لیے ڈریس پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض بما ویسٹ کوٹ اور طلباء کے لیے جمعے کے دن شلوار قمیض پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ نئے ڈریس کوڈ کا اطلاق 11 مارچ 2019 سے ہوگا۔ نئے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر 5,000 روپے جرمانہ اور کلاسز کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شعیب کہتے ہیں کہ بزنس اسکول کے طلباء کے لیے لازمی ہے کہ وہ فارمل ڈریسنگ کریں اور طلباء کی گرومنگ کے لیے نیا ڈریس کوڈ جاری کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیا ڈریس کوڈ ہماری تہذیب کی بھی پہچان ہے۔ LDA واک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ کا بزنس پلان بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ مالیت کا منصوبہ 80% سے زائد مکمل کر کے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर टाउन में 1 अरब 70 करोड़ मालियत का मंसूबा शुरू किया। वॉक एंड शॉप मंसूबे में डिजाइन की तब्दीलियों और फंड्स के रोके जाने पर मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। मंसूबे की तकमील की 4 डेडलाइंस दी गयी। चारों डेडलाइंस खत्म होने के बावजूद मंसूबा नामुकम्मल है। इस हवाले से डीजी LDA ने बिजनेस प्लान बनाने की हिदायत की थी, जिसमें LDA हुक्काम नाकाम रहे। अरीना प्रोजेक्ट में 80 दुकानें, फूड कोर्ट, प्ले एरिया समेत दीगर सर्विसेज को आउटसोर्स या लीज पर देने का फैसला न किया जा सका। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन के LDA पर कार्रवाई के बाद अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। LDA के आला अफसरान समेत 25 अफसरान पर एंटी करप्शन के मुकदमात हैं। LDA के अफसरान की जानिब से पुराने प्रोजेक्ट की तकमील और नए मंसूबाजात में अदम दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर लोहारी गेट नाम का डायग्नोस्टिक सेंटर तवील अरसे से सेंटर में एक्सरे टेस्ट की सहूलत नापैद, जबकि CBC टेस्ट की सहूलत भी बंद है। टेस्ट की सहूलियात नापैद होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर लोहारी गेट में सहूलियात का फुकदान। महकमे की तवज्जो का मुंतज़िर गवर्नमेंट लोहारी डायग्नोस्टिक सेंटर शहरियों को सिर्फ हिफाजती टीकाजात की सहूलियात मुहैया कर रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरे मशीनें खराब होने से सहूलत तवील अरसे से नापैद, जबकि कमरे को भी ताले लगा दिए गए हैं। सेंटर में CBC टेस्ट की बुनियादी सहूलत भी नापैद है। इलाका मकीनों का कहना था कि पहले डिस्पेंसरी थी, तब जो सहूलियात दी जा रही थी, डायग्नोस्टिक सेंटर का दर्जा मिल जाने के बाद सहूलियात की फराहमी में बेहतरी नहीं आई। आगे बढ़ें, आपको बताएं निगरान हुकूमत में बंद होने वाले 20% प्रोजेक्ट अलाउंस को बहाल करने की तैयारियां कर ली गई। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के आला हुकाम ने सरकारी कंपनियों और प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वाले सरकारी अफसरान को इजाफी अलाउंस देने के लिए सिफारिशात मुरतब करना शुरू कर दी हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर खान दुरानी ने अपने दौर में ऐसे सरकारी अफसरान जो मुख्तलिफ कंपनीज और प्रोजेक्ट पोस्टों पर तैनात थे, उनके लिए जारी होने वाले माहाना 30 से 50 और 80 हजार रुपए की ग्रांट पर पाबंदी आयद की गई थी। अब जराये ने बताया है कि मौजूदा हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी के लिए बंद होने वाली सरकारी मराद को बहाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जराये ने यह भी बताया है कि प्रोजेक्ट पोस्टों और सरकारी कंपनीज में तैनात अफसरान की तनख्वाहों में कमी के लिए नया फार्मूला भी बनाया जा रहा है, जिसमें कम तनख्वाह लेने वालों को अब 20% इजाफी अलाउंस देने पर गौर किया जा रहा है। निज़ाम अदल के इस्तेहकाम में हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी खुसूसी अदालतों में तैनाती के लिए वजीर आजम की मंजूरी इल्तिवा का शिकार है। 20 से ज़ायद जजेस के तकर्रुर तबादले लटक गए, जबकि जजेस की तैनाती न होने से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद भी बढ़ने लगी है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम एहतसाब, बैंकिंग समेत दीगर खुसूसी अदालतों में तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लाजमी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी न होने के बाद पंजाब की 20 से ज़ायद अदालतों में जजेस के तकर्रुर और तबादले ताखीर का शिकार हैं। लाहौर, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब समेत दीगर अजला में खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। हाई कोर्ट की जानिब से सेशन जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवाने के बावजूद वज़ीर आज़म ने ताहाल मंजूरी नहीं दी। पंजाब की 10 बैंकिंग अदालतों में जजेस तैनात नहीं। लाहौर की 7 में से सिर्फ 1 बैंकिंग अदालत काम कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में 1, लाहौर हाई कोर्ट में 12 जजेस की आसामियां पुर न हो सकी। जजेस की तैनातियां न होने से ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ताहाल 1 जज की आसामी खाली है। हाई कोर्ट में काफी माह से 12 जजेस की आसामियां खाली पड़ी हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद की रिटायरमेंट में 22 रोज बाकी रह गए। उनकी 25 मार्च को रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में मौजूद आसामियों की तादाद 13 हो जाएगी। नई तैनातियों से वकला को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस बनने के मौके मिलेंगे। आपको बताएं, देसी घी एक ऐसी चीज है जो इंसान को भरपूर तवानाई बख्शता है, मगर अफसोस ये है कि दौर जदीद में इस घी में भी मिलावट ने यूं जकड़ लिया कि आज खालिस देसी घी का तो सोचा भी नहीं जा सकता। लाहौरिये देसी घी के नाम पर क्या खा रहे हैं, बता रहे हैं इमरान यूनुस। आज लोगों की अक्सरियत किसी ऐसी चीज की जरूरतमंद है जो उन्हें माकूल एनर्जी फराहम करे, और अगर कहीं ये चीज घर पर बनी हो तो उसके क्या ही कहने। देसी घी का शुमार भी इन खालिस आइटम्स में होता है जो इंसान के लिए कुव्वत बख्श हैं। लेकिन अफसोस कि मार्केट्स में मिलावट माफिया सब्जियों के तेल और दीगर केमिकल से बने घी को देसी घी का नाम देकर फरोख्त कर रहे हैं। मिलावट आमतौर पे किसी चीज़ को उसकी असली हैसियत से चेंज करने के लिए या माली मफाद के लिए या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या कंज्यूमर को धोखा देने के लिए की जाती है। कुछ इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जो कि लेबल के फ्रॉड के ज़मरे में आती हैं। शहरियों की अक्सरियत जाली घी की निशानदही की अहलियत नहीं रखती, जबकि लेबोरेटरी के बगैर देसी घी की पहचान कदरे मुश्किल अमल है। देसी घी का खालिसपन चेक करने के लिए मुख्तलिफ एसिड मसलन नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फेरफेरोल अल्कोहल का इस्तेमाल भी होता है। जबकि फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों को खालिस अशिया की फराहमी फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाएगा। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये पंजाब में इनकी कोई जगह जो है वो नहीं रहेगी और इनके लिए घेरा जो है वो आने वाले वक्तों में मजीद तंग होगा।
दूध से बनने वाला ये देसी घी इंसान को भरपूर ताकत फराहम करता है। मिलावट माफिया से छुटकारा हासिल करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने खालिस घी बेचने वाली कंपनियों के नाम समाजी राब्तों के जरिए शेयर कर दिए हैं, जिससे अवाम फायदा उठाते हुए सेहत बख्श घी खरीद सकते हैं। कैमरामैन एहसन अली के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। यहाँ पे आपको अपडेट करें कि वासा में 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शेख अजमत के SDO फतेहगढ़ से तबादले के अहकाम मनसूख कर दिए गए हैं। शेख अजमत बदस्तूर जूनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर 2 काम करेंगे, जबकि शेख मोहम्मद इमरान को SDO फतेहगढ़ तैनात किया गया है। इमरान तोफैल को SDO ताजपुर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद अहसन असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू रावी टाउन तैनात हैं। मोहम्मद आदिल रेवेन्यू से तब्दील करके असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लालक जान चौक में खवातीन और बच्चों ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कजाफी बट की रिपोर्ट इसी बारे में है। लालक जान चौक में तहरीक इंसाफ की खवातीन और बच्चों की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर पाक फौज और पाक फिजाइया के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने साबित कर दिखाया कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी। कश्मीर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको बैठ के पूरी दुनिया एक मसला आइडेंटिफाई करके इसका कोई हल नहीं निकालेगी, ये जंग खत्म नहीं होगी। मोदी बाज आ जाओ, तेरी आंखें निकाल देंगे, तुझे वहाँ गाड़ देंगे जहाँ सरजमीन हमारी पे लहू का एक एक कतरा गिरा के हमने पाकिस्तान हासिल किया था। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम पाक आर्मी के साथ हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले और मसला कश्मीर हल करवाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कजाफी बट, सिटी 42। उधर अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से पाक भारत कशीदगी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। नामवर कालिम निगारों और तज्जियाकारों ने मसला कश्मीर समेत पाक भारत कशीदगी पर भारतीय मीडिया को खूब आड़े हाथों लिया। एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से मुनक़दा सेमिनार में CEO एपिक्स ग्रुप राना अदील, यासिर पीरजादा, अनीक नाजी, फर्रुख वराइज, अली अब्बास, मरियम फरहान, सलमान आबिद, गुल नोहेज अख्तर और दीगर शुरका मौजूद थे। तकरीब का मकसद पाक भारत कशीदगी पर हकीकी मसाइल से शुरका को आगाह करना था। सेमिनार में शरीक कालिम निगारों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया के मनफी रवैये पर तनकीद की और शुरका को भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे बारे आगाह किया। वो इतना नालायक पायलट हमने रख के क्या अच्छा किया, उनको वापस किया, जाओ भी ले जाओ। तो जंगी कैदी बना लेना बड़ी अच्छी बात है। कैदी आपने बना लिए, जिनेवा कन्वेंशन के तहत आपने मुआहदा किया हुआ है, वो वापस भी हो गए उनके। इतना ही बहुत था कि उनका तैयारा गिरा दिया, उसको बेचारे को जो मारपीट की वहां पे उसके साथ हो गई। CEO एपिक्स ग्रुप राना अदील का कहना था, सेमिनार का मकसद पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक शुरका को असल हकायक से आगाह करना और सरहद पार अमन का पैगाम देना है, जिसका मकसद ये था कि हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और इस जंग के जो मामलात हैं इसके अंदर अगर हम जंगी मामलात की तरफ जाते हैं तो हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पाक भारत कशीदगी न सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की जुबान पर है। तकरीब के शुरका का कहना था, पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना होंगे। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अली रामे, सिटी 42। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने CM पैकेज के हवाले से रोके गए केसेस पर असातिज़ा को तरक्कियां देने की इजाजत दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। CM पैकेज के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए खुशखबरी। स्कूल एजुकेशन ने 31 दिसंबर 2017 में CM पैकेज के हवाले से रोके गए केसेस पर तरक्कियां देने की इजाजत दे दी है। स्कूल एजुकेशन ने केस मुकम्मल न होने के बायस 1000 से जायद असातिज़ा का CM पैकेज रोक दिया था। पंजाब टीचर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी काशिफ शहजाद का कहना था कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फैसला खुशाइंद है। इस्लामाबाद से लाहौर के लिए बुक कराए बैग में से 2 बैग गुम करने पर जनरल मैनेजर न्याजी कार्गो सर्विस बंद रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सारिफ अदालत में शाह जमाल के रिहायशी मोहम्मद लियाकत अली भट्टी ने न्याजी कार्गो सर्विस बंद रोड के जनरल मैनेजर के खिलाफ 6 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने सामान के 6 बैग इस्लामाबाद से लाहौर के लिए बुक कराए। जब वो बैग लेने कार्गो ऑफिस बंद रोड गया तो वहाँ पर 6 बैग में से 2 बैग गायब थे। उसने जनरल मैनेजर और इंतजामिया के दीगर अफराद से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने 2 बैग्स के हवाले से कोई जवाब न दिया। दावे में कहा गया है कि बैग में एक लैपटॉप, फोन और दीगर कीमती सामान मौजूद था, जिनके गुम होने की वजह से वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो
गया है। अदालत से सदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने समाअत के बाद दरखास्त गुजार के हक में डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म जारी किया कि दरखास्त गुजार को गुम होने वाले बैग की रकम और 10,000 रुपए हर्जाना अदा किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की अहलिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की अहलिया की नमाज जनाजा मियानी साहब कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी, चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत जस्टिस नजमुल हसन शेख, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद फरूख इरफान खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद यावर अली, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर, जस्टिस शकीलुर रहमान खान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार शफकत महमूद चौहान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, जस्टिस रिटायर्ड रऊफ अहमद शेख, साबिक जस्टिस मसर इकबाल सिद्धू, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद वहीद डार, साबिक सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नजीर तारड़, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मोहम्मद जुबैर आसिफ समेत दीगर वकला और शख्सियात शामिल थीं। मरहुमा को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने PhD की पहली डिग्री जारी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी PhD की डिग्रियां देने वाला इदारा बन गया है और पहली 2 डिग्रियां मिली हैं इस साल, और उनमें से एक रुस्तम खान साहब को मिली है जो महकमा आसार कदीमा में मुलाजिम भी हैं और क्यूरेटर हैं जावेद मंजिल यानी अलामा इकबाल म्यूज़ियम के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि ये डिग्री क्या है और कितनी अहमियत है इसकी? हम 2 अफराद हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल किया NCA से, PhD इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान में भी अपनी नौइयत की पहली PhD है, यानी ये दोनों डिग्रियां जो हैं हेरिटेज मैनेजमेंट कंजर्वेशन में, ये दोनों पाकिस्तान में भी अपनी नौइयत की पहली डिग्रियां हैं। एक तो डिग्री मेरी है और दूसरी हमारे दोस्त हैं गुलाम मुस्तफ़ा बलोच साहब जो कि रिटायर्ड इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उनकी है। अच्छा ये बताइए कि इस डिग्री से इस फील्ड में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तान जो कि आपको मालूम है कई हज़ार साल 5,000 साल हड़प्पा से लेकर अब टिल नाउ ब्रिटिश पीरियड तक जो है हेरिटेज बिखरा पड़ा है यहाँ पे। इसकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है उसके हवाले से जो है यहाँ पे एजुकेशन में पर्टिकुलरली हमारी जो एजुकेशन का करिकुलम है उसमें कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के दौरान उनकी तबीयत बारे पूछा। 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुलाकात जारी रही। इस दौरान शरीफ बरादरान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी मुशावरत की। मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से पार्टी अमूर बारे हिदायत भी ली। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को चाहिए था कि वो OIC इजलास में जाते और 57 में से 7 अरकान को भी मना लेते तो हम इसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मोदी और भारतीय अवाम जुदा हो चुके हैं। भारतीय अवाम को ये बावर हो चुका है कि मोदी अपने इलेक्शन और ज़ाती मुफादात की खातिर फौज और मुल्क को दाव पर लगा रहा है। दोनों तरफ से हजारों बेगुनाहों को मरवा कर ही मोदी की तसल्ली होगी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पहली बार दुनिया की नजरों में इस तरीके से उजागर हुआ है कि दुनिया के तमाम बड़े मुमालिक ने मसला कश्मीर को अहमियत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन से सूबाई वज़रा की मुलाकातें हुई। किसानों के मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल और सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। जहांगीर तरीन ने वज़रा से मुलाकातों में किसानों से गंदम की खरीदारी और ज़राअत पॉलिसी पर गुफ्तगू की। मुलाकात में गंदम की खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने शहर में PCL मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी है। कहते हैं खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट की भी बेहतरीन सहूलियत दी जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग 4 के मैचेस के इंतजामात, ट्रैफिक प्लान और सिक्योरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट के लिए भी बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा इवेंट है उतने ही शानदार इंतजामात करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी के लिए रास्तों पर सकाफती शोज का एहतमाम करने, मौसर ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद करने और मुतल्लिका इदारों को आपस में ताउन करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बस सर्विस के जरिए शायकीन को पार्किंग से स्टेडियम तक आने और जाने की सहूलियात देंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर खेल तैमूर खान, चीफ सेक्रेटरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, IG पंजाब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CCPO लाहौर, सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी खेल और सिविल और अस्करी इदारों के आला हुकाम शरीक थे। दीगर खबर शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि हमल के दौरान कम से कम अद्वियात का इस्तेमाल बच्चे में समात की कमी के इम्कानात में कमी लाने में मुआवन है, जबकि माहिरीन का मजीद कहना था कि बरवक्त तशखीस से 60% बच्चों में समात के मर्ज से छुटकारा दिलाया जा सकता है। 3 मार्च समात के आलमी दिन के हवाले से लाहौर जिना हस्पताल शोबा नाक कान गला की जानिब से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार और वॉक का इनेकाद हेड शोबा ENT प्रोफेसर राशिद ज़िया की जानिब से किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल, डॉक्टर्स और नर्सेज ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर राशिद ज़िया का कहना था बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद ही समात में कमी या महरूमी की तशखीस कर ली जाए तो 60 से ज़ायद फीसद बच्चों का इलाज मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड हियरिंग डे है, इसका मतलब इस बहुत खूबसूरत सेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल करना है, आम करना है कि इसमें कमी की वजह से इंसानी ज़िंदगी पे बे इंतहा शदीद किस्म के अवामिल मुतासर होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो ही बच्चा दुनिया में आए पहले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ये पता श्योर होना चाहिए कि उसकी समात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें, आपको बताएं इन्फिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ज़रिए तमाम पहले स्किल्स वर्कर्स ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का हवाला इस रिपोर्ट में। जायका जापान और समेडा के ताउन से इन्फिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेखुपुरा में पहला स्किल्स वर्कर ओलंपिक्स मुनक्किद हुआ, जिसमें CNC मशीनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वेल्डिंग, कन्वेंशनल मशीनिंग, ऑटोकैड समेत 11 कैटेगरी में माहिर कारीगरों ने अपनी महारत दिखाई। मुकाबले में 50 से ज्यादा कंपनीज के वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन न्यूटेक जावेद हसन, चेयरमैन रावी ग्रुप चौधरी मोहम्मद इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अब्दुल रज़ाक गौहर और DG न्यूटेक जावेद काजी ने शिरकत की। शुरुका ने पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की। ओलंपिक्स के शुरका का कहना था कि मुकाबलों का मकसद इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाना है। कैमरामैन राना मशहूद अहमद के साथ फारान यामीन, सिटी 42। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया और ढोलची अरिश्मा ने शानदार परफॉर्मेंस दी। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे थे अलहमरा हॉल से, जहां पर परफॉर्मेंस पेश की जा रही थी।